Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. So today we have an online class on of ITN, and the topic which we are covering. But before the start of the class, will you please let me know that you are getting my audio, video, and screen shared with you? Everything is fine? Yes, sir. Okay, Mehran. So the answer. So we start with the network representation and topologies. Ladies and gentlemen, it means, first of all, we must understand what is the objective of a network. Definitely, the objective behind making a network is resource sharing. Resource sharing. Now, these resources may be hardware or software, or maybe some information from files. So you are sharing that. That is the reason you want to go for it to make a network. Now, for this case, if you want, are you making a network, you have to connect the devices with one another. So when you are connecting the devices with one another, what you look, that is called topology. जो आपको नजर आता है, मिसाल के तौर पे ये आपने एक स्विच दिया, उस स्विच के साथ आपने चंद डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया. दिस इज ए टोपोलॉजी. So we will look at in this topic two things. One is the one is the physical topology, and the other is the logical topology. So we'll look at these two topics first. Then we will look at that when we form a LAN, locally a network, we have different type of topologies in which LAN can be made. For example, it may be a star topology, it may be a ring topology, it may be a bus topology, it may be a hybrid topology. 1, 2, 3, and 4, hybrid topology. So these are some of the topologies which are in the LAN. Mostly in the WAN, we have the topologies, maybe a point-to-point, or it may be a mesh, or it may be a partially mesh, and some others as well. So these are the topologies which are in LAN, and the types physical topology and logical topology. We have to understand these few things in this topic. Does it make sense? कि Yes, टोपोलॉजी sir. कहते हैं किसी जो चीज आपको दिखाई, जैसा नेटवर्क दिखाई दे, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं. ओके, अगर ये बात हमारी समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह हमें दिखाई दे, इसको फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं. जैसा हमें दिखाई दे, इसको फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आपको जो टोपोलॉजी यहाँ पे नजर आ रही है, इट लुक लाइक ए स्टार. कि कोई सेंटर है और उसके गिर्द ये चीजें बनी हुई हैं. दिस इज स्टार. इसी तरह मिसाल के तौर पे एक डिवाइस दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरी डिवाइस तीसरे से कनेक्टेड है, चौथे से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन. सो हाउ इट लुक्स लाइक अ रिंग, it looks like a star. Similarly, if you have a central bus or a cable and the devices are connected to this bus, so this will be called as the bus topology. So how it looks to you, it looks like to you like a star. So physical topology is star, physical topology is ring, physical topology is bus. Does it make sense? And if you mix them, for example, there is a star here and there is a star here as well, as you can see on your screen, and they are connected with a bus probably. So it is not now a star, it is not a bus, but it is a hybrid. It is a mixture. That's the reason it is called hybrid topology. So how you see to the devices connected, this is called physical topology. And in the physical topology, mostly what is shown, the location of the devices. Maybe this switch is in, for example, EE department. This one is in the CSE department.
So it is showing you the devices, where these switches or these devices are connected. Maybe these two is in the chairman office, these two are in the coordinator office, or in some lab. So when these locations are represented or shown in the topology, we call it a physical topology. Does it make sense, ladies and gentlemen? Okay, if it is clear, then we move further. It must be clear, number one, okay, whenever you connect the devices with one another, it is important कि उसमें कोई ऐसा डिवाइस हो जो कि उनको आपस में कनेक्ट करने में मदद दे. जैसे मिसाल के तौर पे आपको आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है एक कार्ड. आपको आपकी स्क्रीन पे एक अदद कार्ड दिखाई दे रहा है. और अगर मैं इसको फॉर ए टाइम बिंग बंद कर दूं जी, और इसको जी, तो मोहम्मद अशफाक आपको नजर आ रहा है कि कार्ड आपको नजर आ रहा है मेहरान? यस सर. जी. अब इस कार्ड में अगर आप देखें तो कल भी हमने देखा था कि इसमें एक इंटरफेस, एक पोर्ट है. इस पोर्ट के जरिए दिस डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द स्विच और टू अनदर डिवाइस. इसको हम कहते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अब्दुल्ला, रोहिल आफरीदी probably came for the first time today. Am I right, रोहिल? यस सर. कोशिश करेंगे क्लासेस मिस ना करें. क्लासेस मिस करेंगे तो फिर फायदा नहीं नहीं रहेगा. सर, ऑनलाइन पहली बार आया हूँ मैं, तो क्लास में आता हूँ सर. अच्छा, क्लास में आते हैं, फिर ठीक, फिर ठीक है. तो जेंटलमैन, आज की क्लास तो है ही ऑनलाइन, तो इट्स नॉट बैड. तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिवाइस आपको नजर आ रहा है, दिस डिवाइस इज द एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसी तरह आपको एक और इंटरफेस कार्ड भी नजर आ रहा है. ये भी वो उसी तरह का इंटरफेस कार्ड है, लेकिन इसमें ये कनेक्टिविटी नहीं है. जहां पे मेरी फिंगर आपको नजर आ रही है, ये कनेक्टिविटी ईथरनेट की है. यहां पे आपको जो चीज नजर आ रही है, यहां पे आपका एंटेना लगता है. इसका मतलब कि अशफाक, ये आपका वाईफाई का इंटरफेस है. जब इसको आपका, इसका मतलब है कि अगर आपके लैपटॉप में, मिसाल के तौर पे आपके लैपटॉप में एनआईसी नहीं है, यानी कि वाईफाई नहीं है, तो आप ये कार्ड अपने डिवाइस के अंदर, तो ये लैपटॉप का नहीं है, ये डेस्कटॉप का है, डेस्कटॉप के अंदर लगा दें तो दैट विल बी देन टॉकिंग टू दी एक्सेस पॉइंट और एक्सेस रूटर. मेरी बात समझ आ रही है अब्दुल्ला? क्लियर है ना? तो यानी कि सबसे पहली चीज जो हमें समझ आई कि अशफाक, वीडियो बंद करो. इरशाद, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो सब बंद कर दें तो कर दें, इट डजंट मैटर. एनीहाउ, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस कार्ड कि सबसे पहली चीज, अगर आपने नेटवर्क बनाना है तो यू मस्ट हैव ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नंबर टू, इस कार्ड के ऊपर आपके लिए पोर्ट होना जरूरी है. जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर पोर्ट है, फिजिकल पोर्ट. तो इस पोर्ट के जरिए ये एनआईसी कार्ड दूसरे डिवाइस के साथ, चाहे वो स्विच है, चाहे वो राउटर है, चाहे वो फायरवॉल है, यानी कोई भी डिवाइस है, उसके साथ जाके ये कनेक्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि टोपोलॉजी बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए, आपके डिवाइस में, आपके लैपटॉप में, आपके स्मार्टफोन में, हर में, मिसाल के तौर पे आपके डिवाइस में मल्टीपल इंटरफेस कार्ड हो सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर देखा होगा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे, तो कि वो लैपटॉप नहीं जो मैं रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको ये बताऊं, IP config/all करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंटरफेस नहीं है. यहाँ पे देखें, ब्लूटूथ का इंटरफेस भी है. इसका मतलब इसका मैं ब्लूटूथ का, मेरे लैपटॉप में ब्लूटूथ का आप भी कर सकते हैं. अपने लैपटॉप जिस डिवाइस से आप कनेक्टेड हैं, आप उसमें IP config/all दे दें, आपको पता चलेगा कि देखिए, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक ब्लूटूथ का इंटरफेस है. इसके अलावा
अगर हम और भी देखना चाहें कि कौन कौन सी इंटरफेसेस हैं इस लैपटॉप पे, तो ये बता रहा है कि आपके कंप्यूटर पे एक वाईफाई इंटरफेस है जिसके जरिए मैं इस वक्त आपसे कनेक्टेड हूं। इसके अलावा इसके अलावा ये कहता है कि जी कोई इथरनेट का वीएम वेयर, क्योंकि अल्दो के वो इस कंप्यूटर पे काम तो नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि मेरा अपना लैपटॉप जो है वो लास्ट वीक खराब हुआ, तो ये जो बैकअप लैपटॉप है उसमें काम जारी है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक वीएम वेयर इंस्टॉल किया गया हुआ है। ये आपके साथ फर्दर क्लासेस में बात की जाएगी कि इससे मैं एक मशीन पे मल्टीपल मशीन चला सकता हूं, जिसको वीएम कहते हैं, वर्चुअल मशीन कहते हैं। तो एक वर्चुअल मशीन का इंटरफेस कार्ड है, वो भी इथरनेट है। इस यानी 3 हो गए। इसके अलावा और देखते हैं कितने हैं जी। एक और है वीएम वेयर का और भी है, जिसका नाम, इसका नाम वीएम नेट 8 है, इसका वीएम नेट 1 है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कई फिजिकल इंटरफेसेस हैं, कई लॉजिकल इंटरफेसेस हैं। देखिए ये एक और डब्ल्यू लैन का इंटरफेस हमें नजर आ रहा है। तो मल्टीपल इंटरफेसेस एक कंप्यूटर में हो सकते हैं। एक कंप्यूटर से मुराद डिवाइस, होस्ट। तो एक डिवाइस में मल्टीपल एनआईसीज हो सकते हैं। याद रखें कि पोर्ट और इंटरफेस का टर्म इंटरचेंजेबली यूज होता है लिटरेचर में। दोनों का मकसद ये है कि जिसके जरिए आप किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। नॉर्मली राउटर्स में हम उसको इंटरफेस कहते हैं, स्विचेस में और एंड डिवाइसेस में हम उसको फिजिकल पोर्ट कहते हैं या पोर्ट कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही? ऐसा। ओके नाइस। अब एक चीज और याद रखिए कि ये नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बड़ी, अगर आप कहीं भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपके पास ये नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो। क्यों? मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि जी मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, मेरा नेटवर्क से मैं कनेक्ट नहीं हो सक रहा। आपको पता ही नहीं है कि अब मैं मिसाल के तौर पे मैं सीएससी में बैठा हुआ हूं और मैं उनके स्टाफ को कहता हूं कि जी मेरा लैपटॉप आपके नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा। उनको पता ही नहीं है कि मैं किस स्विच पे कनेक्टेड हूं, उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन कौन से स्विचेस से होकर उनके तक पहुंच रहा हूं। तो देन दे विल हैव a lot of problem in solving the problem. This troubleshooting will become too much difficult for them. अगर कहीं रास्ते में केबल कट हो गई तो उनको पता ही नहीं है कि केबल कहां से गुजरी हुई है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कहीं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बने तो एटलीस्ट आप अपने फिजिकल टपोलॉजी बना के अपने पास रखें। और अगर आप उस नेटवर्क को छोड़ के कहीं और जॉब पे जा रहे हैं, वो आप उसको अपने इसे बाद वाले को हैंड ओवर करके जाएं, ताकि उसको भी ट्रबल शूटिंग करते वक्त मुश्किलात का सामना ना हो। एक चीज और कि कोशिश करें कि उस डायग्राम के अंदर प्रॉपर, मिसाल के तौर पे अगर आप यूं उनको बॉक्सेस बना दें, जैसे मैं पढ़ाते वक्त बना लेता हूं कि ये स्विच है, ये स्विच भी उसी तरह का होता है, एंड डिवाइस भी उसी तरह मैं बना देता हूं, राउटर भी उसी तरह मैं बना देता हूं। तो इससे कहीं भी नहीं पता चल रहा कि स्विच कौन सा है, एंड डिवाइस कौन सा है, लैपटॉप कौन सा है, वायरलेस कौन सा है। इनके दरमियान मैं मीडियम के लिए भी बस एक लाइनें लगा देता हूं, इससे क्लियर नहीं होता। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जब भी ये डायग्राम, फिजिकल डायग्राम बनाएं, तो प्रॉपर, प्रोबेबली इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, उसमें ये तमाम डिवाइसेस के मौजूद हैं, तमाम डिवाइसेस के पिक्चर मौजूद हैं, जैसे डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, वायरलेस टैबलेट्स हैं, आईपी फोन्स हैं। इस तरह इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, चाहे वो वायरलेस रूटर्स हैं, लैन डिवाइसेस हैं, लैन स्विच है, राउटर है, फायरवॉल है, मल्टी लेयर स्विच है जिसको लेयर 3 स्विच भी कहते हैं। इसी तरह वहां पे आपको ये अवेलेबल होगा कि कौन से मीडियम से आपने इनको ज्वाइन किया है। क्या आपने उनको किसी वायरलेस मीडियम से कनेक्ट किया है, क्या आपने किसी लैन डिवाइस से यानी कि लैन मीडियम से कनेक्ट किया है, या आपने उसको किसी वैन मीडियम से उसको कनेक्ट किया है। तो प्रॉपर ये मीडियम्स आपने वहां पे शो करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना ही लूं तो इट विल बी इवन मोर नाइस। और बनाने के लिए आपको पता है कि आपके पास पैकेट ट्रेसर मौजूद है, तो हम एक पैकेट ट्रेसर को तो ओपन कर लेता हूं, अगर आप भी चाहें तो ओपन कर सकते हैं मेरे साथ। तो चंद ही मिनट सेकंड्स में ही या मिनट के विद इन अ मिनट इंशाल्लाह ये पैकेट ट्रेसर हमारे सामने आ जाएगा।
और फिर हम इस पे थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। फिर मिसाल के तौर पे जी हम पहले एक स्विच लेते हैं। तो देखें जी मैंने स्विच को क्लिक किया और यहां से मैंने 2960 सीरीज का एक स्विच ले लिया। उसके बाद इस स्विच को मैंने एक अदद राउटर के साथ कनेक्ट करता हूं। देखिए मैंने एक राउटर लिया, फॉर एग्जांपल 1941 का एक राउटर, और इसी तरह का फॉर एग्जांपल 29101 का एक दूसरा मॉडल का राउटर भी मैंने ले लिया। ये इसलिए मैंने दो डिफरेंट मॉडल्स लिए ताकि आपको क्लियर हो कि लाजमी नहीं कि सारे के सारे डिवाइसेस एक ही तरह के आपके नेटवर्क में होंगे, नहीं। अब पीटीसीएल जैसा बड़ा नेटवर्क है, नयाटेल जैसा नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल वतीन जैसा नेटवर्क है, तो उनपे आप ये बाउंड्री नहीं लगा सकते कि सारे के सारे डिवाइसेस एक ही लोगे, नहीं। डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, दे विल टेक एंड दे विल पुट इन देयर नेटवर्क। ओके, अब मैं इसके अलावा यहाँ पे कुछ वायरलेस डिवाइसेस भी आपके सामने ले आता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन और भी खत्म हो जाए। मैंने यहाँ पे एक वायरलेस रूटर भी लगा दिया। अब इनको हम कनेक्ट करते हैं तो मीडियम चाहिए। तो मीडियम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्शंस लिखा हुआ है। कनेक्शंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स हैं। मिसाल के तो आप देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रेट केबल। तो मिसाल के तौर पे मैं एक स्ट्रेट केबल से, अभी स्ट्रेट केबल की बजाय मैं क्रॉस केबल से इस स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करता हूं। ये भी तो स्विच है, वायरलेस रूटर। ये मैंने इसको यहां कनेक्ट कर दिया। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक और क्रॉस केबल लेता हूं और उससे मैं इस स्विच को इस रूटर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। इसका मतलब है कि देखिए ये आपको नजर आ रहा है कि लैन का कनेक्टिविटी है यहाँ पे। इसी तरह मैं एक अदद स्ट्रेट ये केबल लेकर, जो कि सीरियल केबल है, जो कि वैन केबल है, देखिए मैंने यहाँ पे इसकी गीगाबिट 00 से, ओके यहाँ पे हमने इसके लिए वो नहीं डाला, कार्ड नहीं डाला। तो आपको आज ये भी सिखा देता हूं कि बाज वक्त इन राउटर्स में जो कार्ड हमें जरूरत होता है, जैसे भी मैंने आपको कार्ड दिखाए इंटरफेस कार्ड्स, वो इंटरफेस कार्ड नहीं था, वो इसमें हम ऐड करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत ही ईजी है। रियल राउटर में तो होता है कि हम मार्केट से खरीद के लाएंगे और अपने डिवाइस के अंदर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम इसको ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें 12 स्लॉट्स जो हैं ओपन पड़ी हुई हैं। देखिए ये खाली पड़ी हुई है। हम इन स्लॉट्स में अपने कार्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए करने के लिए सबसे पहला चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये हॉट स्वैपेबल नहीं है। हॉट स्वैपेबल का मतलब ये होता है कि आपका डिवाइस चल रहा हो, ऑन हो, और आप उसमें से हार्डवेयर निकाल लें या लगा लें। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर, एक आसान सी एग्जांपल, आप किसी भी अपने डिवाइस में फ्लैश ड्राइव रनिंग कंप्यूटर में लगाते हो और निकाल लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ हार्ड डिस्क में से निकाल लो, या अगर मैं आपको उससे कहूँ कि इससे आप रैम निकाल लो, तो वो आपको ऑफ करना होगा पहले। तो इसलिए ये कार्ड भी लगाने के लिए, इस इंटरफेस कार्ड को लगाने के लिए पहले आपको इस स्विच को या राउटर को बंद करना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है। तो जब ये ग्रीन है तो इसका मतलब ये ऑन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये ग्रे हो गया है। इसका मतलब है कि ये ऑफ हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये कार्ड लगा सकता हूं। तो देखिए मैंने यहां से ये एक वायरलेस कार्ड, वायरलेस एनआईसी लिया और इसके अंदर छोड़ दिया। तो ये देखिए इसके अंदर लग गया। जो ही लग गया मैंने इसको ऑन किया। जो ही ऑन किया तो सीएलआई में आप जाके देखें ये दोबारा से रिबूट हो रहा है। और जब ये काम हो रहा है तो इसके फ्लैश में इमेज पड़ा हुआ था, वो इमेज डिकम्प्रेस हुआ। किसका इमेज? आईओएस का इमेज। और वो आईओएस का इमेज से ये बूट कर गया। ठीक है जी। तो ये इस तरह का काम होता है, आपको आना चाहिए। इसी तरह यहां पे हम इसको दे देंगे नो, और ये पहुंच जाएगा ऑन हो गया। ये तो एक राउटर हुआ। कौन सा राउटर हुआ? 0 के 1। ये हुआ था ये वाला राउटर, राउटर 0। अब राउटर 1 के साथ भी ये खेल खेलना होगा। तो ये राउटर 1 है, दूसरे मॉडल का है। इसमें ज्यादा आप देख रहे हैं कि इंटरफेस कार्ड्स की जगह है। और इसको भी अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये देखें आपको नजर आ रहा है मुख्तलिफ इसमें स्लॉट्स खाली पड़ी हुई। इसको भी पहले हम ऑफ करेंगे, इसका ढूंढेंगे कि कहां पे है इसका बटन।
तो ये हमें नजर आना चाहिए कि इसका बटन ऑन ऑफ का, इसका ऑन ऑफ का बटन ये है जी, नजर आपको आ गया। ये सिस्को 2900 सीरीज का स्विच है और ये ऑन है इस वक्त। इसको हम ऑफ करते हैं, ये देखिए जी ऑफ हो गया, ग्रे हो गया। और अब हम यहां से इसकी किसी भी इंटरफेस के अंदर यहां पे हम एक कार्ड लाकर छोड़ देंगे। जो पे छोड़ा ये कार्ड यहाँ इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हुआ तो हमने इसको ऑन किया। ऑन किया तो सीएलआई में आपको मैं दिखा सकूंगा कि इसका इमेज, आईओएस का इमेज डिकम्प्रेस हो रहा है और फ्लैश से, यानी इसकी परमानेंट मेमोरी से इसके एनवी रैम जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वहां पे ये सारी चीजें हमें अवेलेबल होगी। इसको अभी हम नो कर देते हैं, जो कि हमेशा करेंगे। तो ये दोनों, ये राउटर भी तैयार हो गया। अब हम इसके दरमियान में एक, हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला राउटर R0 जो है, ये फॉर एग्जांपल पिशावर में, ये पिशावर में, यूईटी पिशावर में, चलें, ये यूईटी पिशावर में। जबकि ये राउटर जो है ये नया टेल इस्लामाबाद में है, नया टेल इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में। तो हमने इसके साथ लिख दिया। अब हमें इनको कनेक्ट तो करना है। इसके लिए हम एक अदद सीरियल केबल के जरिए या वैन लिंक के जरिए, मैंने इसके देखे सीरियल पोर्ट से इसकी सीरियल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं अब प्रॉपर मीडिया आ गया। अब एक और काम भी करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक एंड डिवाइस और लेते हैं, एक दो एंड डिवाइसेस लेते हैं। एक पीसी ले लेते हैं और एक लैपटॉप ले लेते हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं। अब यहां पे हम एक अदद स्ट्रेट केबल से कनेक्ट करते हैं। अब ये स्ट्रेट केबल बनाएंगे आफ्टर ईद। तो ये देखें जी, हमने इसकी फास्ट इथरनेट से उठाया और स्विच की किसी एक पोर्ट के ऊपर, यानी इसकी पोर्ट से इसकी पोर्ट के ऊपर, यानी कि जो कार्ड मैंने अभी आपको दिखाया था, ये कार्ड यहां पे काम आया। यहां पे आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैंने ये कार्ड मेरे इस लैपटॉप PC0 में भी है और इसी तरह का कार्ड मेरे स्विच 1 में भी, स्विच 0 में भी है। इनको मैंने आपस में, अब देखेंगे टपोलॉजी बन रही है, एक टपोलॉजी बन रही है। ओके, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन हो रही है। ओके, सो जेंटलमैन, यहां पे अब कौन सा मीडियम होगा? लाजमी तौर पे वायरलेस। तो इसके लिए हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें वायरलेस का कार्ड है, और अगर नहीं है तो हम इसमें वायरलेस का कार्ड लगाएंगे, क्योंकि लैपटॉप है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें वायरलेस का कार्ड नहीं है, इसमें भी आप जैसे अभी आपने देखा, ये आपका वायरलेस का कार्ड है जिसमें यहाँ पे एंटेना लगेगा, ये है वायरलेस का कार्ड। तो मैं इस अपने लैपटॉप में कोई एक स्लॉट के अंदर ये लगाता हूँ, तो ऑलरेडी इसके अंदर जो लगा हुआ है वो कौन सा कार्ड है? ईथरनेट का। लेकिन मैं वहां पे वायरलेस दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ये इसको भी ऑफ करूंगा पहले। तो देखिए ये ऑन है, इसको भी ऑफ किया, देखिए ऑफ किया तो ये ग्रे हो गया। अब मैं ये वाला कार्ड इसमें से निकाल लेता हूँ, देखिए ये कार्ड खाली हो गया, ये पोर्ट खाली हो गई। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला कार्ड ला के लगा दिया, देखिए जी लग गया, और इसको ऑन कर दिया, ये देखिए जी ऑन हो गया। अब मैं इसके, देखें जी, जो ही मैंने ये किया, यहाँ पे कौन सा मीडियम नजर आ रहा है? वायरलेस मीडियम नजर आ रहा है, मेहरान, हमरा, अशफाक, यस नजर आ रहा है ना? तो आपने जब टपोलॉजी बनाई, तो अब आप यहाँ पे लिखें कि ये राउटर कहाँ है, ये राउटर, ये पीसी कहाँ है, ये स्विच कहाँ है, ये राउटर कहाँ है, सारे के बारे में आपने इस डायग्राम के ऊपर लिखना है। और फिर इस डायग्राम को आप प्रिंट करके अपने पास सेव कर लें, डॉक्यूमेंटेशन में लगा दें। तो इसको हम कहेंगे कि क्योंकि उनकी लोकेशंस बता रहा है, तो हम इसको कहेंगे दैट इज द फिजिकल टोपोलॉजी। मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब आप, यस अगर सर। आपको टास्क दे दिया जाए अब्दुल्ला, हमरा, आतिफ के जी, फरजीन, कि ये आप बनाई, तो आप मेरा ख्याल से इजीली आप इस किस्म के डायग्राम्स, ये तो मैंने पैकेट ट्रेसर पे बनाया। मोस्टली डायग्राम्स के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट विजुओ इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुओ इस्तेमाल करते हैं। हल तो छोटा मोटा हो तो वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ड ज्यादा उसमें इस तरह के डायग्राम्स वगैरह या फिगर्स नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुओ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। even it can be done here as well, as I've shown. ठीक है शफाक? यस सर। ओके नाइस।
तो कहने का मकसद ये हुआ कि आपने पहली चीज जो सीखी कि आपने सीख लिया कि फिजिकल पोर्ट्स क्या है। अब देखें हमने इस डायग्राम में यहाँ पे क्या चीज ऐड की थी, इंटरफेस ऐड की। हमने एक वैन इंटरफेस ऐड की थी इस राउटर में भी और इस राउटर में भी। और उस इंटरफेस के जरिए हमने इन दो राउटर्स को, जो कि एक पिशावर में है दूसरा इस्लामाबाद में है मिसाल के तौर पे, हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने पोर्ट्स की बात भी की। तो हमने यही बात तो यहाँ पे सीखने की कोशिश की कि हमें पता हो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन में वो क्या है। आपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी देखे। अभी मैंने राउटर में भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाया। अभी मैंने आपके वायर में लैपटॉप में भी वायरलेस कार्ड लगाया। तो आपको समझ आ गई कि मैंने उसमें क्या चीज इंसर्ट की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और मैंने आपको उनकी फिजिकल पोर्ट्स भी दिखाई और इंटरफेस के बारे में भी बताया। आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। यस सर। अब दोनों के डायग्राम में फिजिकल टोपोलॉजी पे तो हमने अच्छी गपशप लगा ली, बात कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि फिजिकल में और लॉजिकल में फर्क क्या है। तो मेन फर्क जो लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल में ये है जेंटलमैन, कि फिजिकल टोपोलॉजी में जैसे मैंने कहा और आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि हम उनकी लोकेशंस में इंटरेस्टेड हैं, फिजिकल लोकेशंस में इंटरेस्टेड हैं। जैसे आपको अगर इस डायग्राम को आप देखें तो ये बता रहा है कि राउटर 1 कहाँ लगा हुआ है, रैक 1 में लगा हुआ है। रैक 1 के शेल्फ 1 में लगा हुआ है। ये स्विच रैक 1 के शेल्फ नंबर 3 में लगा हुआ है। ये स्विच शेल्फ 2 में लगा हुआ है। ये आगे 3 सर्वर्स हैं, जो कि एक वेब सर्वर है रैक 2 में लगा हुआ है, एक एक जो है वो ईमेल सर्वर है, एक फाइल सर्वर है। उनकी लोकेशंस बता रहा है कि कौन से रैक में कौन से रूम में एग्जैक्टली ये चीजें अगर आप आपने डायग्राम में बता रही हैं तो आप कहेंगे ये क्या है, फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी। इसके मुकाबले में जो लॉजिकल टोपोलॉजी होती है वहां पे फिजिकली आप नहीं बताते कि किस जगह पे ये डिवाइस लगा हुआ है। आप उनके नेटवर्क एड्रेसेस बताते हैं। जैसे मिसाल आगे हम ये पढ़ेंगे कि नेटवर्क एड्रेस क्या होता है। आप उनके उनकी इंटरफेसेस के बारे में बताते हैं कि कौन सी इंटरफेस है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में मैं आपको अभी दिखाऊं, अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखा दूं तो आपको अभी भी नजर आ रहा है कि देखिए ये इसका गीगाबिट 0/0 इंटरफेस है। ये भी इसका गीगाबिट सम इंटरफेस है। ये इसका सीरियल 011 इंटरफेस है। ये इसका सीरियल। तो ये यहाँ पे मैं क्या चीजें बता रहा हूं, अगर मैं इसके आईपी एड्रेसेस हैं वो भी इसके साथ बताऊं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस, इस नेटवर्क का एड्रेस जो है, इस नेटवर्क का एड्रेस जो है वो 192.168.1.0/24 है। उसमें इसका आईपी एड्रेस जो है वो 192.168.1.1 है। इसका एड्रेस जो है वो 192.168.1.2 है। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं उनके एड्रेसेस बता रहा हूं, मैं उनकी इंटरफेसेस बता रहा हूं। मैं ये इस किस्म का डायग्राम, और इसके अलावा एक चीज और भी होती है जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाई जा सकी, वो ये है कि जैसे देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नेटवर्क एड्रेसेस बताए जा रहे हैं कि भाई इस डिवाइस नेटवर्क का क्या एड्रेस है, फिर कौन सी इंटरफेस पे साथ कनेक्ट हुआ है, इस डिवाइस का क्या अपना आईपी, ये तो पूरे नेटवर्क का एड्रेस है ना। इस इंटरफेस, इस आईपी, इस वेब सर्वर का क्या एड्रेस है, ईमेल का क्या एड्रेस का है, इस फाइल सर्वर का क्या एड्रेस है, अगर स्विच का कोई एड्रेस है तो वो क्या है, इस राउटर की जितनी इंटरफेसेस हैं इनका क्या आईपी एड्रेसेस हैं। तो ये इस किस्म का डायग्राम को हम कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। इसके अलावा बाहर जो कहा था हम उसके ट्रैफिक के बारे में बताते हैं कि इसलिए नेटवर्क में ट्रैफिक किस तरह फ्लो करेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब हमें किसी डायग्राम से मिले तो उस डायग्राम को क्या कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉजिकल टोपोलॉजी। आई होप इट मेक्स सेंस नाउ। यस सर। ठीक है। अब ये तो आपने लॉजिकल और फिजिकल समझ लिया। इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेट करें कि ये एक स्विच है। इस स्विच के अंदर तो मुझे नहीं पता कि डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हो रही हैं। लेट करें कि मैं कहता हूं कि जिसके अंदर एक बस है और उस बस से एक एक पोर्ट बाहर निकली हुई है, लाइक दिस। अब अगर आप देखें तो आपका डिवाइसेस, चले मैं ग्रीन से डिवाइसेस शो कर देता हूं, ये डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, ये डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं। तो हाउ इट लुक्स टू यू, व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी इट इज। Star, sir. शाबाश, स्टार, नो डाउट।
लेकिन अगर मैं कहूं लॉजिकली कौन सी टोपोलॉजी है, तो क्या जवाब, ये तो हो गई फिजिकल, सही आपने जवाब दिया, फिजिकल टोपोलॉजी स्टार. व्हाट टाइप ऑफ लॉजिकल टोपोलॉजी इट लुक्स टू यू? शाबाश, कोई भी गेस लगा दें. mesh mesh Hamra is asking about or saying about the mesh. And the answer is that I have to look at how the traffic is flowing from, for example, if this is my node number 1 and this is my node number 5, for example. So traffic, how it will go here? The traffic will come here, it will go into this bus and will reach to the destination. So basically, logically, the traffic is flowing in this network in the form of a bus. मैश तो ये होती कि ये डिवाइसेस, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती. जैसे मिसाल के तौर पे, इफ यू हैव दीज 4 नोड्स, so this node is connected here, connected here, connected here, connected here, again connected here, so connected here. So all node, misal ke taur pe, if n1 wants to talk to n2, for example, there is one way this, okay, second way is this, yes, third way is this, yes. So this is the mesh. This is not a mesh, this is a bus. Does it make sense, Hamra? yes sir. ओके, तो आपने उसकी ट्रैफिक को देख के डिसाइड करना है कि लॉजिकल टोपोलॉजी कौन सी है, और दिखाई कैसा दे रहा है इसको देख के डिसाइड करना है कि फिजिकल टोपोलॉजी कौन सी. आई होप नाउ इट्स क्लियर. ओके, देन वी मूव टू दी कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क्स. Ladies and gentlemen, it means that you can have a network which may be very small and a network which may be very large. So from small to large, different type of networks are possible. Like for example, you may have two sensors which might be a few centimeters apart from one another, which may be installed on your body. And the first one is, for example, measuring the temperature of your body. The second one is measuring, for example, the sugar level of your glucose level of your blood, and so on. So because these are attached to your body, I may call it a body area network. Similarly, if I go a little more, you people always use nowadays the Bluetooth, where you have a single device and another device may be a few meters apart. A few meters, I'm using the word, be careful. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ब्लूटूथ यहाँ ऑन करूं और आपको अपने हॉस्टल में या अपने घर पे ब्लूटूथ ऑन करें और हम कम्युनिकेट कर लें. नो, वी शुड बी इन द सेम रूम at least. So we call such a network as a personal area network. So the technology here is used is the Bluetooth mostly, or it may be the Zigbee. So that's, as compared to the PAN, the PAN is larger. Then you may have the local area network, LAN, which अभी जो हमने यहाँ पे नेटवर्क बनाया, अभी जो हमने यहाँ पे नेटवर्क बनाया, this is a LAN. This is a local area. This one is a wireless LAN. This is the wireless LAN. चलिए, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं. This is the wired LAN. This one is the, which is covering this switch and this device, PC0, is the wired LAN, Ethernet LAN. So this is, again, यही बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि you can have a LAN which can be wired or which can be wireless. Which can be wired or which can be wireless.
So, ladies and gentlemen, this is bigger. It may cover a building, for example, or a few rooms, for example, like your home. Then, bigger than that is the man, which is, or below this is a CAN, which is the campus area network. Like in UIT, in the university campus, you have the UIT, you have the KMU, you have the KMC, you have the KCD, you have the Peshawar University, you have the Agriculture University, you have the Jinnah College, and so on. So if you connect all of them in a single network, you may call as the campus area network. Then you may have a network which is covering the whole city. Probably a network. You may have heard the name of a few years back, there was a PTCL flavor which was named as V phone. That was giving, this V phone was giving one thing more, because probably this is our first online class. After approximately 1 minute, this connection will be dropped, but I will send you another link. So we will be connected and we will be continuing, inshallah. So that V phone was providing, again, it was wireless, but it can be wired as well, which only provide you the connectivity within a town, like Peshawar, like Lahore, like Rawalpindi, like Islamabad. So this will be called as the MAN. And then comes the wide area network, which covers the whole country or whole continent or whole world. And the very good example of the internet is WAN is the internet. Does it make sense, ladies and gentlemen? Common type of Yes, network. sir. Okay. If it is clear, it is something written here as well, like a small home. But do remember that this course is mostly covering the LAN part and the WAN part. It is starting from the LAN and trying to converge on the WAN. Although, आपका क्या ख्याल है, ये कौन सा नेटवर्क है जो आपने अभी बनाया? ये कौन सा नेटवर्क है? LAN है कि WAN है कि MAN है कि क्या है? सर वैन। WAN. Okay. तो जिस तरह के, what is your opinion, Laiba? Is it what type of network it is? Are you listening me, Laiba? Laiba is on the chat probably. नहीं, ये मौसम का messages थे. Laiba haven't responded yet. What about you, Afridi? What type of network it seems to you? सर मुझे तो लैन लग रहा है। तो लाइबा ने भी कहा कि लैन है, और प्रॉबेबली अगर नेटवर्क मेरा शायद हो गया, यहाँ पे बिजली का इश्यू है, लेकिन चेक करते हैं। तो जी, इरशाद इज सेइंग वैन, और लाइबा इज सेइंग लैन, और अब्दुल्ला ने भी कहा लैन। तो मैं हमेशा खुश होता हूं कि मेरी क्लास में जमहूरियत नहीं है। क्यों लाइबा? लाइबा ने मेरे साथ लास्ट ईयर FIP भी किया था। ओके, सो रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो बात हम कर रहे थे कि ये कौन सा नेटवर्क है। तो दो ने कहा कि लैन, और एक ने प्रॉब्ली कहा कि ये वैन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्ली दोनों के आंसर मैं कह सकता हूं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये वैन है। लेकिन लैन क्या, मल्टीपल लैन्स, millions of LANs, when you connect them together, it become a WAN. Like you have two LANs in Peshawar, and you are connected to Islamabad, and Islamabad is connected to the rest of the world, for example. Even not connected, you are connecting two cities, Islamabad and Peshawar. So this becomes a complete WAN. Does it make sense? जिन्होंने कहा कि LAN, उनकी क्लैरिटी हो गई कि ये LAN नहीं है, ये यस सर। LANs का मजमुआ है, and it is forming a WAN. ठीक, it is forming a WAN. तो हम बात कर रहे थे कि आपके इन डिवाइसेस को जब आप कनेक्ट करते हैं, तो इट माइट बी लाइक योर होम, स्मॉल होम, इट माइट बी, आपने देखा होगा कहीं आपके दोस्त जो हैं वो एक दो कमरे कहीं पे ले लेते हैं, किसी भी डीन प्लाजा में फॉर एग्जांपल, और या गुलाजी प्लाजा में, और वहां पे अपना छोटा सा ऑफिस बना लेते हैं।
स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, या इट मे बी ए मीडियम, जैसे आपकी स्कूल फॉर एग्जांपल, जैसे पिशावर मॉडल स्कूल है फॉर एग्जांपल, या सेंट मेरीज है फॉर एग्जांपल, तो वहां पे यू हैव ए मीडियम टाइप ऑफ नेटवर्क. You have maybe 20 rooms, 30 rooms, you are connecting them together. So it becomes even you are connecting the security cameras there. So you are forming a medium type of network. And it might be a worldwide network. And the very nice example of worldwide network is the internet. बात समझ आ गई? ओके, अगर ये समझ आ गई यस सर। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि आपका एक लैन यहाँ पे सेंट्रल में है, एक आपका ब्रांच में है, एक आपका होम का है, तो दीज आर दी डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स. बट व्हेन यू कनेक्ट देम, दीज लोकल एरिया नेटवर्क्स, दे माइट बी इन डिफरेंट सिटीज. दिस माइट बी इन, फॉर एग्जांपल, इन पिशावर, दिस मे बी इन रावलपिंडी, दिस माइट बी इन लाहौर, फॉर एग्जांपल, LHR, Lahore. So this is connecting, this cloud is connecting them, and now it is not a LAN, but it is a WAN, wide area network. So mostly, जैसे मैंने कहा कि इस कोर्स का स्ट्रेस जो है वो टू टाइप ऑफ नेटवर्क्स पे है, एक लोकल एरिया नेटवर्क्स पे और एक वाइड एरिया नेटवर्क्स पे. तो जैसे कि आपको पता भी है कि CCNA के 3 मॉड्यूल्स हैं, उनमें से जो पहले 2 मॉड्यूल है मोस्टली वो इसको हिट करते हैं, और जो थर्ड मॉड्यूल है वो इसको हिट करता है, इंटरप्राइज नेटवर्किंग का. ठीक. सो इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज का. इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज का. सॉरी, कुछ स्लाइड इसमें रह गई. उसके बाद अब दोनों में क्या, मैंने क्या जैसे कहा कि हमारा स्ट्रेस जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क्स पे है. तो देखिए यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क, इनको ज्वाइन कर दिया. इफ दे आर एट फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, वन इज इन पिशावर, अदर इन इस्लामाबाद, इट बिकम्स अ वैन. सो और ये लिंक भी वैन लिंक है, ये लिंक भी वैन लिंक शो किया कि इसलिए हमने कहा कि ये 2 लैंस, ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग है. ठीक है. हाँ, अगर यहाँ पे एक इथरनेट केबल शो की गई होती तो फिर हम कहते हैं ये लैन है, 2 लैंस. तो हमें क्लियर हो गया कि लैन और वैन क्या है. अब फर्क क्या है? सबसे पहला, लैन में फर्क ये होता है कि लिमिटेड एरिया को कवर करता है, और वैन वाइड ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है. मोस्टली लैन एक ऑर्गेनाइजेशन की मलकियत होता है. जैसे यूटी में जितने भी लैंड्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में है, सिविल में है, मैकेनिकल में है, जहां भी है, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिस्पॉन्सिबल है. जबकि वैन में लाजमी नहीं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसकी मालिक हो. जैसे इवन अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो देखिए, यूटी इज कनेक्टेड विद नया टेल, नया टेल इज कनेक्टेड टू PTCL. अब देखिए कुछ पार्ट इसका यूटी का है, कुछ पार्ट इसमें नया टेल का है, कुछ पार्ट इसमें PTCL का है, कुछ पार्ट इसमें इतिसलात का है, एंड सो ऑन. So it is typically administered by more than one service provider. In the LAN, we have high speed bandwidth available to us. High capacity is available here. मिसाल के तौर पे आजकल आपके इवन कॉपर पे you can go up to 10 gigabit per second. And even in the wireless WLAN, theoretically it can go up to 9.6 kilobit per second, megabit per second. Huge. Sorry, 9.6 gigabit per second. So which means high speed bandwidth is available within the LAN, while in the WAN you may have small one, slower link speeds. जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका UET है, UET is connected to, in real example, UET is connected to the Nayatel as a service provider, and here the link which we have is 490 megabit per second. So as compared to the speed which is available within the LAN, here the speed is small, here the speed is low. So that's the reason it is written here, typically provide slower speed links between the LANs. Does it make sense?
ओके, तो हमने कहा कि जो इंटरनेट है उसमें मल्टीपल लैंस या कैन्स या मैन्स आपस में इंटरकनेक्ट जब कर दिए जाते हैं, तो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज द वैन। और मैंने कहा कि द गुड एग्जांपल ऑफ वैन इज द इंटरनेट। एंड डू रिमेंबर दैट दिस इंटरनेट इज स्टैंडर्डाइज्ड। दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड। क्या मतलब होता है स्टैंडर्डाइज का? इवन लैन में स्टैंडर्डाइज्ड है। मिसाल के तौर पे आपको नजर आ रहा है, अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देना चाहिए कि ये जो कार्ड आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कार्ड, इसकी ये जो इंटरफेस है इसका एक खास साइज है। ये नहीं कि कहीं पे छोटा कर दिया कहीं बड़ा कर दिया, नहीं, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। अभी कितने बिट्स पर सेकंड ले सकता है या दे सकता है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड। कौन सी केबल इस्तेमाल होगी वो भी स्टैंडर्डाइज्ड। इसका मतलब ये होता है, स्टैंडर्डाइज का फायदा ये होता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? इंटर ऑपरेबिलिटी आ जाती है। यानी एक तरफ मिसाल के तौर पे ये स्विच, ये राउटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राउटर लेट कर सिस्को का है, ये लेयर 3 स्विच है। ये लेयर 3 स्विच फॉर एग्जांपल हवावे का है, ये जूनिपर का है। yes, it can interoperate with one another. Why? Because they both are being made by using the standards, and these standards are given by certain bodies, like for example IEEE, or for example IETF, or for example NC, ANSI, NC, or for example ITU, and many more. So the job of these bodies, international bodies, is to give standards to, so that all the devices, which may be some in your countries, maybe in your continent, maybe around the other part of the globe, they must be able to interoperate with one another. क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। तो मेहरान, इसके बाद हम एक 3 टर्म्स और पढ़ना चाहते हैं। एक को कहते हैं इंट्रानेट, इंट्रा, बल्कि अगर मैं स्ट्रा को दूसरे कलर से शो कर दूं तो इन, यहां पे मैं इस रेड से लिखता हूं इंट्रा, और बाकी इंटरनेट कर देता हूं। फिर है एक्स्ट्रानेट, EXTRA, एक्स्ट्रानेट। And then I want to explain the last one, which is called internet, TER. So these 3 terms I want to explain. However, ladies and gentlemen, all of these 3 networks uses the same technology. Technology wise, there is no difference. However, how they behave, how they perform, how they function, they are different. मिसाल के तौर पे, let's take the example of Siemens. Probably you know Siemens is one of the company of telecommunication, or you may take the example of Cisco, or you may take the example of any other company, Huawei for example, or Juniper for example. So let it be, they have an office in, Siemens have an office in Germany because this is a German company. So they have a office in Germany, they have an office in US, they have an office in China, and they have an office in Australia, for example, as well. So you want that these my far apart offices, organizations should be interconnected with one another. Yes, it's possible. They can be connected to one another. But the resources, because we know that the basic objective of the network is to share the resources. So whatever the resources are in this Siemens organization, for example, will be available to their office in Australia, in Germany, in US, in China,
but not to anybody else. No one from you can access the resources which are available in maybe in Australia or in Germany or in US or in China. So such a network is called intranet. Such a net, because it is written here company only. Within the company only it will be providing the resource sharing. And out? No, not at all. Such a network is called intranet. I marked it 1. Then, for example, Siemens comes to know that I have certain customers, vendors. I have certain customers, vendors around the globe. Like, for example, they find that PTCL is their customer. PTCL is buying equipment from Siemens. Yes. Maybe Natel is also buying equipment from them. For example, Mobilink is also, or Telenor is also buying equipment from them. So they give access to these customers or vendors as well. Natel, PTCL, and Mobilink. So now this network will be called as extranet. But again, not you, not me will be able to get any resource from this network. That's the reason it is called, it is along with the company, suppliers, customers, calibrators will also be able to access the resources. So such a network will be called as extranet. Then comes the internet. Ladies and gentlemen, the internet means all. The internet means all. No restriction. याद रखें, इंटरनेट किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता. आप कहेंगे नहीं जी, कई जगहों पे तो हम नहीं जा सकते. वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको रिस्ट्रिक्ट करती है. इंटरनेट किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता. वो आपको खुली छूट देता है कि जिधर जाना चाहें जा सकते. So basically these are the definitions of internet, intranet, internet, intranet, and extranet. Make sense? Yes, sir. Nice. Now we come to the topic, which is internet connection. Just brief कर देता हूं, फिर explain इसको after the midterm करूंगा इंशाल्लाह. इंटरनेट कनेक्शन से मुराद ये है कि आपको पता है कि मिसाल के तौर पे I am at my home, H1 may I call it, you are at your home, H2, someone in his hostel, HO1 for example, someone is in the car for example, but they want to be interconnected with one another. What need to be done? Everyone should be connected to a service provider. Everyone should be connected to a service provider. Like for example, in my case, my service provider is Strom Fiber. Strom Fiber. Someone might be connected with PTCL. Someone might be connected with the any other, for example, Natel. Someone might be connected because it's in the car, may be connected with the Mobilink, like Jazz. So, ladies and gentlemen, these are the service providers. Service providers. So these service providers are interconnected with one another. These are interconnected with one another. So for H1 to be connected to H2 or for H1 to be connected to HO1, there need to be a connection here, connection here, connection here, and a connection here. These networks are called access network. Access network. And this topic is about the same, this access network. And ladies and gentlemen, do remember that this access network can be for
small to medium organizations, like here it may be a UET, a large organization, a small organization, or a large organization. So technologies are different in this access network for small and large networks, organizations, small and large organizations. Like for example, you may be using, number one, a dial-up modem, dial-up modem. May be using a DSL, digital subscriber line. You may be using cable network. You may be using passive optical network. You may be using active optical network. You may be using the mobile data. So these are some of the, although you may write here the satellite as well, but satellite is very expensive. So mostly the small organization or small homes are not interested in the satellite, but it is, if the chances are such that you want to be connected at any cost, then yes, you can go for the satellite as well. But for large organizations, you may have the leased line, which is also called the point-to-point link. Point-to-point link. Or it may be a very high-speed DSL, VDSL, which is also called SDSL. Or it may be the lease line or DSL, it may be satellite as well. So these are for the large organizations. So, but the objective of all of these technologies which are on your screen is to connect the small or large organization to their service providers. This is the topic which is called internet connection. Does it make sense? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे भी यही देखें दिखाया गया है कि इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज में क्या हमने पढ़ना चाहते हैं, हम यही पढ़ना चाह रहे हैं कि हाउ, if this is for example our service provider, so how we can be connected to this service provider, whether it is a small organization or a large organization, how it will be connected to their different service providers. So these networks which provide them is called access networks or the last mile. Here's the question. Out of them, which one is best? And why is PTCL is from fiber sector? Okay, Irshad. The first answer is, which one is good or bad is depending upon your choice. Because the user, misal ke taur pe, I may say satellite is very good because wherever you are connected, but you have to pay a large amount. Whether it is affordable, it is good. If it's not affordable, it is worst. So that's the reason I can't say which one is good or bad. It depends upon your requirements and the resources. Based upon this, you have to decide. Misal ke taur pe, if you want to buy a laptop is available at rupees 30,000 as well. And the similar laptop is available at rupees 1 million as well. So definitely, if you don't have the 1 million, so the best for you is for rupees 30,000 then. But if you have the 1 million, if you have 10 million in your account, so for 30,000 is the worst for you. So that's the reason I can't say, or nobody can say, which one is good or bad. ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब इरशाद. दूसरे सवाल का जवाब, why sir PTCL, Storm Fiber, Nayatel, Mobilink, Telenor, Warid, वगैरह, etc. etc. Definitely, gentlemen, this is the business. जैसे आप बाजार से इवन कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, इवन आप दूध लेने जाते हैं, आप बेकरी आइटम लेने जाते हैं, तो दुनिया में कोई एक बेकरी तो नहीं है, दुनिया में कोई एक तो मिल्क शॉप नहीं है. इवन आपके बाजार में, घर में, आसपास different number, maybe 5, 10, 15, 20, whatever, you can find them. इस तरह, because it's a business and business में मुख्तलिफ companies आगे आती हैं. They want to serve the people, but they want to, on the other hand, they want to get the return on their investment. पैसे कमाना चाहते हैं. तो इसी वजह से आपकी, जैसे हमने आपके मुल्क की एग्जांपल ली
कि जी यहाँ पे पीटीसीएल भी है, यहाँ पे स्टॉर्म फाइबर भी है, यहाँ पे नया टेल भी है, यहाँ पे कुछ लोग एप्टाबाद वगैरह है, वहां पे और कंपनियों के नाम से भी हैं। तो इसी तरह आप अपने अगर मोबाइल इसको देखते हैं, वायरलेस को यानी मोबाइल को, तो यू हैव दी डिफरेंट कंपनीज लाइक यूफोन, यू हैव दी मोबाइलिंग, यू हैव, जिसे मौजम ने बताया एयर मैक्स, दैट इज इन दी हजारा एरिया। तो कहने का मकसद ये है, जीन एप्टाबाद विच इज पार्ट ऑफ हजारा। तो कहने का मकसद ये है जेंटलमैन के इरशाद, यू हैव टू बी, इस वजह से ओके नाइस। तो इरशाद को मेरी बात समझ में आ गई कि जी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये बिजनेस में आती हैं, लेकिन देन दे हैव टू बी इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। ये नहीं कि मैं अगर पीटीसीएल का यूजर हूं तो मैं सिर्फ पीटीसीएल के यूजर से बात कर सकता हूँ, मैं नया टेल वालों से नहीं कर सकता, मैं स्टॉर्म फाइबर वालों से नहीं कर सकता, मैं एयर एयर समथिंग अभी नाम बताया हमें मुअज्जम ने, प्रॉब्ली इट वाज सम एयर समथिंग, मैं उससे बात नहीं कर सकता। नहीं, दिस इज नॉट द केस। तो देन दे दी सर्विस प्रोवाइडर इंटरकनेक्ट विद वन अनदर। लेकिन हमारा कनेक्शन इस तक, हमारा कनेक्शन हमारा कनेक्शन अपने सर्विस प्रोवाइडर तक जो है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वो हमने आपके सामने लिख दी। इनको हम ब्रीफली देखेंगे और यहां से इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफी है। और बताता चलूं कि क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने कल डिसाइड कर दिया था, अल्दो कि आज की स्ट्रेंथ इतनी बुरी नहीं थी, अराउंड 11 लोग अवेलेबल हैं, नॉट बैड, लेकिन इससे पहले 12 थे, लेकिन फिर भी हम आपको ये पर हमने पहले कहा कि हम इस कोर्सेज को आप पे बर्डन नहीं बनना देना चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपनी रेगुलर स्टडीज के साथ साथ आप इनको करें और इससे फायदा उठाएं। तो इसलिए कल से लेकर और अगला कंप्लीट वीक हमारी क्लासेस नहीं हुई। हाँ, उसके बाद टिल ईद आप लोग डेफिनेटली अपने घरों को चले जाएंगे, हम इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और उसमें भी हमारी जो जो 2-3 क्लासेस हैं वो हम लेने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ईद के बाद तो आपने ऐसे भी ईद पे छुट्टियां होंगी, ईद के बाद जब आप इंशाल्लाह वापस आएंगे अपनी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो हम दोबारा फिजिकल पे और ऑनलाइन साथ चलता रहेगा, ऑनलाइन और फिजिकल के हाइब्रिड मॉडल पे दोबारा आ जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कर सकते हैं, और लेकिन उस वक्त तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं कोशिश करें कि इनको थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो कर लें, ना मिले तो ठीक है, ईद के बाद सीरियसली या मिड टर्म के बाद सीरियसली इन चीजों को टाइम दे दीजिएगा। एनी क्वेश्चन आई एम बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, और अगर नहीं है तो देन आई मे से अल्लाह हाफिज ऑल टू ऑल ऑफ यू एंड मे से गुड लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। जी लेडीज एंड जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, इरशाद। सर पहले तो आपके सर सर्विसेज का सर बहुत शुक्रिया कि आप हम सर क्लासेस के साथ साथ समझा रहे हैं सर हम, और बहुत सी चीज़ों का सर हमें रिवीजन हो रहा है, बहुत सी चीज़ें सर नहीं भी सीख रहे हैं। लेकिन सर एक गुजारिश थी आपसे सर हम, जी बोलें। सर क्या आप हर मीटिंग को सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमें वो मिल नहीं रहा कि आप मतलब नहीं, वो किधर कर रहे हैं सर आपकी बात कभी। बिल्कुल ट्रू है। मेरा और हम यहाँ पे इस क्लास में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा टीए है जो कि जकी, वो इनको कनेक्ट कनेक्ट करता है, लेकिन पिछले 3-4 दिन या थे वो कह लें बिजी है वट एवर। लेकिन जो ही वो थोड़ा सा टाइम उसको मिलेगा, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जैसे अभी आपने देखा कि आपके 3 मुख्तलिफ वीडियोस बनी, इनको कनेक्ट इकट्ठा करना होता है और फिर इकट्ठा करके आपकी तरफ पहुंचाना होता है। तो इस वक्त ये थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन नॉर्मली जो आप वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे को लेते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सैटरडे और संडे को हवाले कर दें, लेकिन इस बार डिले हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये जितनी हो गई ये भी आपको मिल जाएंगी, और फ्यूचर में भी जो हम वेनेसडे थर्सडे जो भी वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे को लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको वेनेसडे थर्सडे को तक सब मिल चुके। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? जी मौजम, सर हमारे पास जी बोलें। सर हमारे पास डिफरेंट इंटरफेसेस है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट आईपी भी चाहिए होंगी, तो हम ये किस तरह मैनेज करते हैं? और दूसरा ब्लूटूथ हम कैसे मैनेज करते हैं? मैक एड्रेस से करते हैं या आईपी एड्रेस वो भी यूज करता है? जी, तो क्वेश्चन इज के आपका पहले तो ये कि अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको पता है कि, और आगे हम जाके देखेंगे
कि IPv4 एड्रेसेस की तादाद जो है वो तकरीबन 4.3 बिलियन है, और जो IPv6 है उसकी तादाद 3.4 इंटू 10⁻18 है। तो इन आईपी एड्रेसेस में से कुछ एड्रेसेस लेट करें इसने स्टॉर्म फाइबर ने ले लिए, कुछ पीटीसीएल ने ले लिए, कुछ एयरटेल ने ले लिए, कुछ मोबिलिंक ने ले लिए, कुछ टेलीनॉर ने ले लिए, एंड सो ऑन। और फिर इन्हीं आईपी जो इन्होंने लिए उनमें से ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। क्या ये आपका क्वेश्चन था मेरा? सर हमारे डिवाइस में जो डिफरेंट इंटरफेसेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे हर पास इंटरफेस का अपना आईपी, हर ये सर तो इंटरफेस हम का आईपी। वो हम कैसे मैनेज करते हैं जी वही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको कहा कि, और आगे हम देखेंगे भी, कि एक केस तो ये होता है कि आप नहीं मैनेज करते, आपका ये ऑपरेटर होम यूजर के लिए करता ये है कि वो आपके इस डिवाइस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके देता है, और इस डिवाइस में वो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है जिसको DHCP कहते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम यह है कि इसको बता दिया जाता है कि मिसाल के तौर पे आप 192.168.1.20 से लेकर 192.168.1.40 तक के एड्रेसेस दे सकते हो, यानी 20 आईपी एड्रेसेस दे सकते हो। तो यहाँ पे जो भी डिवाइस ऑन होता है उसको पहला आता है तो उसको .20 मिल जाता है, अगला आता है तो .21 मिल जाता है, अगला मिसाल के तौर पे ये आपका लैपटॉप है, ये आपका स्मार्टफोन है, ये आपके भाई का लैपटॉप है, ये आपके कजन का स्मार्टफोन है। तो 1 बाय 1 उनको ये आईपीज मिलते जाते हैं, और इन आईपीज को इस्तेमाल करके अपने ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होता है, और ऑपरेटर जो है वर्ल्ड वाइड इसको कनेक्ट कर देता है। जी जेंटल। ओके सर। और सर ब्लूटूथ कैसे करते हैं? आईपी एड्रेस यूज करते हैं या हमारे पास कोई दूसरी होती है इसमें? नहीं, उसमें उसका उसके अभी आपने ये चीज देखी, और हम दोबारा आपके सामने ला रहा हूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके ईथरनेट या वाईफाई हैं उनको ये एड्रेसेस मिले हुए हैं जिनको आईपी एड्रेसेस हैं। यहाँ पे आपको IPv6 के एड्रेसेस भी नजर आ रहे हैं और IPv4 के एड्रेसेस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसका मैक एड्रेस नजर आ रहा है, फिजिकल एड्रेस नजर आ रहा है, और इसको कोई राउटर से तो गुजरना ही नहीं होता। तो इन एड्रेस के जरिए से आपको नजर आ रहा है कि मेरे डिवाइस पे जो ब्लूटूथ कार्ड लगा हुआ है उसका एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ये है जिसको मैक एड्रेस भी कहते हैं। इसके जरिए ये एक दूसरे से कनेक्ट कर जाता ओके सर, है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मोस्ट मोस्ट वेलकम जी एवरीवन। नो क्वेश्चन? सर जी बोले। सर और न्यूटेक वाले सर नेटवर्क इन्वेस्टिगेटर का कोर्स प्रोवाइड करे सर, उसमें हमेशा लिए या ना ली सर? कौन कौन ऑफर कर रहे हैं? सर न्यूटेक होता है कि क्या होता है सर? TTC होता है सर, ओ एक प्लेटफॉर्म है। नेफ्टेक 6 महीने का कोर्स है उनका। सर वो ले ले सर या ना ले सर, वर्थ होगा इसके साथ साथ सर, हम वो भी करें सर? अगर आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, प्रॉब्ली, क्योंकि उनका कोर्स होता है 5 घंटे का। उनकी जो ड्यूरेशन होती है ऑफिशियली वो जी 5 आवर्स की होती है। तो फिर आपका यस ये सर। कोर्स उसकी वजह से इफेक्ट होगा। ओ सर फिर तो फायदा नहीं है सर। जी, तो यही कहा कि क्योंकि वो अगर लेट करें, वो 2 बजे भी शुरू करते हैं तो वो तकरीबन 5 बजे से या 6 बजे, अगर चलो ऑफिशियली इट इज 5 आवर्स, कई जगहों पे सुबह 9 बजे शुरू होता है और 1 बजे खत्म होता है या 2 बजे खत्म होता है। बाद जगहों पे 2 बजे शुरू होता है, ऑफिशियली इट शुड एंड एट 7 o'clock, लेकिन वो 5, 5:30, 6 बजे खत्म कर देते हैं। तो उस वजह से आपके फिर इस किस्म के कोर्सेज जो हैं वो इफेक्ट होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, if there are no question, Allah Hafiz, and see you after your midterm exam.